Hello students, I Sushma Kataria from Surah School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the first chapter of 11th class syllabus, the portrait of a lady. In this chapter the writer is Khushwant Singh, in which he would describe about his own childhood memories for about his grandmother. So first of all, let's discuss about the appearance of the grandmother. As you know that in our previous video we have already discussed that so she was a very old and with a wrinkled face. She appeared so old that she are hard for him to believe that one day she was very young. In a photograph of with her grandfather, he saw her grandmother that she was very young and beautiful, but it was very hard to believe this, that she can be so young and she can be so beautiful in his young age. Okay, so now just think about the appearance. She was wearing a spotless white sari. She always counting the beads of rosary, जैसे आप इसको रुद्राक्ष की माला बोल सकते हैं, कि वो हमेशा उसको अपने हाथ से काउंट करते रहते थे. उनके जो लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली साइलेंट प्रेयर में मूव आउट होते रहते थे. क्लियर. सो जिससे पता चलता है दैट शी वॉज प्रीटी ट्रेडिशनल. ओके. सो in this chapter, he was discussing about the initial years of togetherness, life in the village. हमने अपनी last videos में भी discuss किया है ये चीज़ कि in village timing में what kind of routine she have. इन वो क्या करती थी, शी यूज टू वेक अप इन अर्ली इन द मॉर्निंग. वो उनको रेडी करती थी, और जब वो उसको रेडी कर रही होती थी, एट द टाइम शी यूज टू सिंग द साइलेंट प्रेयर थ्रू हर लिप्स. But maybe the son was not able, maybe the grandson was able to listen it or not, but she used to do that. Okay. रिक्वायर्ड इन द स्कूल. देखो जैसे शी वुड हैंड ओवर टू हिम, वो क्या करती थी उसको रेडी करना. शी ड्रॉप हिम टू द स्कूल आफ्टर हैविंग थिक, एंड वो क्या करती थी, शी वॉज dropping her, and जब वो क्या आफ्टर हैविंग थिक स्टेल चपातीज with butter and sugar for breakfast, they used to go to leave for school. The author's grandmother always accompanied him to school. It was attached to the temple. ओके. इट वॉज हर हैबिट. वो उसको हमेशा उनकी हैबिट थी कि वो जब भी बाहर जाती थी, शी यूज टू टेक द स्टेल चपातीज फॉर द विलेज डॉग. तो इसमें बेसिकली उनका मेन मोटो क्या था, शी वॉन्ट टू गिव अ लेसन टू हर ग्रैंडसन दैट वी शुड help the person who definitely need our help. Clear. And inside the temple she used to read the scriptures. Clear. So somewhere we can say that she was a kind, she was educated, she was able to read and write. Okay. So what was the turning point? This is a very important question. What was the turning point of their life? The turning point of their life was when the parents take grandmother and the Khushwant Singh to the city. Okay, when they moved to the city, that was the turning point of their relationship. Though they started in the same room, वो एक ही room share करते थे, even then there was a long distance appear in unwantingly, कह सकते हो आप, कि दोनों के बीच में एक जो distance है वो स्टार्ट हो गया. जैसे वो क्या करते थे कि जो ग्रैंड मदर है वो बच्चे को स्कूल तक ड्रॉप करती थी, बट नाउ द बस इज कमिंग ऑन द डोर स्टेप. क्लियर. सो बहुत सारे ऐसे साल निकल गए, बट उनके अंदर जो एक रिलेशनशिप था, एक जो क्लोजनेस थी, वो एक फ्रेंडशिप थी, वो धीरे धीरे इट वॉज गोइंग अवे. इट नॉट, वी आर नॉट सेइंग दैट द फ्रेंडशिप वॉज मूव अवे, बट जो टाइम वो एक दूसरे के साथ जो स्पेंड करते थे, वो 24 hours इट वॉज विद देम, बट नाउ इट इज़ नॉट. Okay. So in the next we can say that meanwhile she was no. अब देखो जहाँ पे when she was in the village, वो क्या करती थी, she used to throw the stale breads to the dog. अब शहर में उनको dogs मिले नहीं, so वो क्या, उसने क्या करना शुरू किया, शी स्टार्ट फीडिंग द स्पैरोज. तो कहीं ना कहीं वो एनिमल लवर, उनको क्लियरली समझ में आता है कि शी वॉज अ एनिमल लवर और नेचर लवर. तो सेम उसी तरीके से वो अपने घर में स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, वो ब्रेड क्रम्स को करती थी. अब यहाँ पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं, डिस्कस अबाउट द रूटीन ऑफ ग्रैंड मदर इन सिटी. तो सिटी में क्या करता है, शी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. शी वो अपनी प्रेयर करती रहती थी. क्लियर. एंड स्क्रिप्चर्स पढ़ना, मंदिर वो स्क्रिप्ट अपने जो घर का जो टेम्पल था, शी यूज टू सिट देयर एंड शी यूज टू रीड द स्क्रिप्चर्स. क्लियर. एंड दोपहर के टाइम पे इन आफ्टरनून शी यूज टू थ्रो द ब्रेड क्रम्स, अपने वो बालकनी में बैठ के, अपनी विंडो साइड में बैठ के, एंड शी यूज टू थ्रो द ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरो. क्लियर. अब
एक पोर्शन यहाँ पे आता है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, वो क्यों थोड़ा सा जो डिस्टेंस जो बिटवीन दोनों के रिलेशनशिप में, ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस आया था उनके, वो सबसे बड़ा क्या था, शी डिड नॉट बिलीव इन व्हाट शी बीइंग टॉट। अब देखो जो गांव के स्कूल थे उसमें क्या पढ़ाते थे उनको, गॉड्स के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाता था, कुछ अच्छे हिंदी के बारे में पढ़ाया जाता, बट यहाँ पे स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, शी डोंट लाइक द लेसन्स ऑफ म्यूजिक, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर जो म्यूजिक की क्लासेस हैं वो, इट वाज नॉट सुटेबल फॉर द नोबल फैमिलीज, clear. So because of this is reason, she was not happy with that, with the idea that the grandson was taking the music classes. She was not, but she want to disapprove that idea, but somewhere the parents of Khushwant Singh said that no, it is a competitive time, so we should have the thing that everything should be there with the son. So this is the reason why there are some kind of slightly difference between the grandson and grandmother. Okay, so the grandmother combat her loneliness by फीडिंग द स्पैरोज। तो उसने अब व्हाट वाज द टाइम रूटीन, वो सुबह उठना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, अपने रोजरी बीड्स को काउंट करना, साइलेंट प्रेयर को करते रहना, एंड दोपहर के टाइम पे वो स्पैरोज को करना, फिर अगेन अपनी प्रेयर में हो जाना। तो समवेयर शी वाज इन्वॉल्व इन हर सेल्फ, वो अपनी ही दुनिया में अलग से होती जा रही थी, बिकॉज द अदर फैमिली मेम्बर डजंट हैव दैट मच टाइम फॉर हो, क्लियर। सो अब यहाँ पे कहता है व्हेन द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, नाउ ही इज़ वेरी यंग बॉय। सो अपने अब उनका अपना क्या हो गया, पहले वो एक ही, जब तक वो बच्चा स्कूल में था तब तक वो एक ही रूम में बैठते थे, बट नाउ ही हैव अ वेरी सेपरेट रूम फ्रॉम हर। सो देयर वॉज अ फर्दर गैप बिटवीन देम, एक गैप जो है उनके बीच में अराइज हो गया, बट शी एक्सेप्ट हर लॉनलीनेस बिकॉज शी नो दैट दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम, सो शी डोंट स्पीक विद एनी वन, बहुत रेयर किसी से वो बात करती थी। ऑल डे लॉन्ग शी सेट स्प्रिंग एंड व्हील द रिसाइटिंग। अब वो क्या करती थी, उन्होंने चरखा काटना, जिसको स्पिनिंग द व्हील, वो उन्होंने शुरू कर दिया, क्लियर। शी रिलैक्स फॉर द शॉर्ट टाइम, बट शी ओनली ऑन द आफ्टरनून शी टू फेड द स्पैरो हु केम लार्ज नंबर, बहुत सारे, जैसे पहले एक दो बर्ड्स आती थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उसको कंटिन्यू स्टार्ट किया, सो इन दैट वे द ह्यूज ग्रुप ऑफ स्पैरोज केम ओवर देयर। So this is the most fun time, or you can say this is the most that kind of time in which she was very happy, because someone is there to separate her from her loneliness, so that was sparrows, क्लियर। सो इस तरह से वो प्रीच करती थी, आती थी, एंड दे वो उनके सर पे बैठना, कंधों पे बैठना, उनके पैरों पे, जांग, मतलब उनकी पूरी बॉडी पे जो स्पैरोज हैं वो बैठ जाती थी, एंड वो क्या करती थी, शी यूज टू फेड द स्पैरोज। Okay, so in the next video we will discuss about the rest of the chapter. Okay.